हाय माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले आज आपको मैं लेकर के चलता हूं जो अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता रहता है, वो यह है कि सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी लेवल, खासकर सेकेंडरी लेवल तक के स्टूडेंट्स को जो सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, मैं उम्मीद करता हूं आपको तो जानकारी होगी। मैं एक एक करके जानना चाहूंगा। नंबर 1 पर आप एक सब्जेक्ट का नाम बताएं। गुड। मैथमेटिक्स, MATHEMATICS और MATHEMATICS, मैथमेटिक्स। सेकेंड सब्जेक्ट साइंस, SCIENCE और SCIENCE। आई एम राइटिंग एवरी वर्ड 2 times। मैं प्रत्येक शब्द को 2 बार लिख रहा हूं। आप देख रहे हैं राइट कॉलम में जा रहा है मैथमेटिक्स साइंस, मैथमेटिक्स एंड साइंस ऑल्सो इन द लेफ्ट कॉलम। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज इंग्लिश, ENGLISH and ENGLISH. Okay. The next subject is Sanskrit. Sanskrit here and here Sanskrit. Sanskrit and साइंस के तहत आप जानते ही होंगे कि 3 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। साइंस में हमारे 3 सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। चलता हूं मैं आगे। साइंस के ही सब्जेक्ट्स के तहत मैं लिख रहा हूं आगे फिजिक्स को, PHYSICS, फिजिक्स, PHYSICS, फिजिक्स। केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री, CHEMISTRY। बायोलॉजी, BIOLOGY एंड BIOLOGY। सोशल साइंस के तहत भी हमारे अगेन फिर 3 सब्जेक्ट्स जनरली आई जाते हैं और वो हैं जियोग्राफी, GEOGRAPHY, GEOGRAPHY, history, HISTORY and HISTORY, and here history, geography, civics, 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 and here civics, right, sorry, CIVICS, civics। ये सब्जेक्ट्स जनरली पढ़ाए जाते हैं सेकेंडरी क्लासेस के स्टूडेंट्स को। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि जनाब आपने एक ही वर्ड्स को 2 times क्यों मेंशन किया, है ना? आप देख रहे हैं कोई फर्क दोनों में अंतर नजर आ रहा है? राइट साइड में दोनों में सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी समझ रहे हैं आप? सिमिलरिटी मींस दोनों में एक रूपता क्या क्या है, और डिसिमिलरिटी मींस दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, अंतर क्या है। तो सिमिलरिटीज यह है कि मैथमेटिक्स में जितने लेटर्स यहां हैं MATHEMATICS, यहां भी सेम नंबर ऑफ लेटर्स हैं MATHEMATICS। दिस इज similarity. The similarity in the words mentioned in these 2 columns, in the left column and in the right column, is that the number of letters in both of the words mentioned in both of the columns is equal. But the difference or dissimilarity is that here the words mentioned in the right column start with the capital letters. Am I right? Okay, and here the words mentioned in the left column start with the small letters. Now the great question means the most confusing thing
I am going to discuss now which one of these words is right. I would like to ask here whether writing this word mathematics starting with M capital is right or writing M with small letter is right. Suppose there is a sentence here. I would like to write here a sentence. Where is the black marker? I would like to get the black marker. Okay, here it is not available, the black marker. I am going to write an example here. I am good at mathematics. M-A-T-H-E-M-A-T-I-C-S or M-A-T-H-E-M-A-T-I-C-S. Which one is right? Mathematics M small is right or M capital is right? And the next one is I like reading English E-N-G-L-I-S-H or E-N-G-L-I-S-H. Which one is right here? Here mathematics M small will be written or M capital will be written? English E small will be written or E capital will be written? I think, would you like to give the reason? Would you like to give the answer that both of the words are right here? Sorry, no. Both of the words are not right. Here mathematics, I am good at mathematics. The first one is right or the second M capital is right? M small is right, M capital is wrong. And in the second sentence, I like reading English E small or English E capital. Which one is right? Again, you would like to say that mathematics M small is right. Then again in English, English E small will be right. And your answer is wrong. E small would be wrong. Here E capital will be right. Would you like to know why English E will be capital? Whereas this word is wrong. Science S capital is wrong. English E capital is right. Sanskrit S capital is right. Physics P capital is wrong. Chemistry C capital is wrong. Biology B capital is wrong. Geography G capital is wrong. History H capital is wrong. And civics C capital is wrong. But मैं जो बोल रहा हूं मेरी बात को आंख मूंद करके विश्वास कर लेना ये आपके लिए उचित नहीं होगा। मैं बता दूं, बुजुर्गों ने कहा है मूर्ख नंबर 2 जो मिलावे हूं मैं हूं। मूर्ख नंबर 2 जो मिलावे हूं मैं हूं। मैं कह दिया कि हां जी मैथ्स एम कैपिटल लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, साइंस एस कैपिटल लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, इंग्लिश ई कैपिटल लिखेंगे तो राइट, संस्कृत एस कैपिटल लिखेंगे तो राइट, हिंदी एच कैपिटल और हिंदी एच स्मॉल इज राइट. विच वन इज राइट? अनडाउटेडली हिंदी एच कैपिटल इज राइट. इसका सबसे अच्छा आपको मैं बता रहा हूं, जिस तरह से दो व्यक्तियों के बीच में, टू पार्टीज के बीच में किसी बात को लेकर अगर स्ट्रगल होता है, अगर दोनों के बीच में कंट्राडिक्शन होता है, डिस्प्यूट होता है, झगड़ा होता है, विवाद होता है, तो कहां जाते हैं अपने उन दो लोग जिनके बीच डिस्प्यूट हुआ, झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, वो तीसरे व्यक्ति का सहारा लेते हैं और उससे वो अपने झगड़े का सॉल्यूशन कराते हैं. बट यहां तीसरा व्यक्ति कौन? मीन्स किसी थर्ड पर्सन से जाकर के आप पूछेंगे कि हां जी कौन सा सही? पूर्णेंदु कुमार ने, जो टीचर ने जो वीडियो बनाया और उस वीडियो क्लिप में जो मैंने देखा, वो यहां पर उन्होंने बताया था कि इंग्लिश का ई कैपिटल, संस्कृत का एस कैपिटल और हिंदी का एच कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल, इसलिए हम उसको सही मानेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं. सबों का बस एक ही आंसर है और वो बेस्ट जज है द डिक्शनरी, द स्टैंडर्ड डिक्शनरी. मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड डिक्शनरी का ऑप्शन दे रहा हूं यहां. नंबर 1 ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी. ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स
डिक्शनरी, और आप सेकंड एक और लिख लीजिए, लॉन्गमैन डिक्शनरी, डिक्शनरी ऑफ कॉमन ग्रामर, लॉन्गमैन डिक्शनरी ऑफ कंटेम्पोररी इंग्लिश, करेक्ट, लॉन्गमैन डिक्शनरी ऑफ कंटेम्पोररी इंग्लिश, इंग्लिश। और भी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से पब्लिश्ड होती है, इसलिए ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स है। उसी तरह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से पब्लिश्ड होने वाली डिक्शनरी कैम्ब्रिज एडवांस लर्नर्स, कॉलिंस डिक्शनरी, चैम्बर्स डिक्शनरी, दीज आर कंसिडर्ड टू बी एडवांस्ड एंड स्टैंडर्ड डिक्शनरी। और यदि किन्हीं को अच्छी इंग्लिश पर कमांड करनी है तो बेशक इनमें से कोई एक, कम से कम कोई एक, एटलीस्ट एनी वन ऑफ दीज following dictionaries should be purchased by the aspirant learner of English. Otherwise it is impossible, or it is undoubtedly your dream of having command, having mastery over English is not possible. इसलिए जब इन एडवांस्ड और स्टैंडर्ड डिक्शनरी को जब आप परचेज करेंगे और उसमें जब देखेंगे इन वर्ड्स को, आप देखिए खुद ब खुद आपको आंसर मिल जाएगा। मैं फिर से रिमाइंड करा दूं, किसी भी इंडियन पब्लिकेशन की डिक्शनरी नहीं, क्योंकि ये वर्ड्स इंडियन ओरिजिन के वर्ड्स नहीं है। हां, हिंदी एक इंडियन ओरिजिन का वर्ड है, बाकी के सारे वर्ड्स सभी के, संस्कृत एक इंडियन ओरिजिन, 2 वर्ड्स हमारे हैं, बाकी के सभी वर्ड्स हमारे क्या हैं, इंग्लिश ओरिजिन के हैं। तो निश्चित है इंग्लिश ओरिजिन का वर्ड है, तो इंग्लिश पब्लिकेशन की डिक्शनरी को हम देखेंगे। और जब स्टैंडर्ड डिक्शनरी में आप देखेंगे, ऑलरेडी खुद ब खुद आपका ये आंसर मिल जाएगा। और उसके जब आप देखेंगे तो इंग्लिश का एक कैपिटल मिलेगा वहां उस डिक्शनरी में, संस्कृत का एस कैपिटल मिलेगा, हिंदी का एच कैपिटल मिलेगा। और दूसरा रीजन यह है कि ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन्स हैं, नेम ऑफ अ प्रॉपर लैंग्वेज, लैंग्वेज, ये लैंग्वेज हैं, LNGUAGE, ये हिंदी भी लैंग्वेज, यहां संस्कृत भी एक लैंग्वेज, और इंग्लिश भी एक लैंग्वेज, और लैंग्वेज का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बाकी ये लैंग्वेज नहीं है। इसलिए ये सबों को जब डिक्शनरी देखेंगे, सारे वर्ड्स यहां आपको स्मॉल से मिलेंगे, करेक्ट। हिंदी वो स्मॉल से नहीं मिलेगा, वो कैपिटल से मिलेगा। सिविक्स करेक्ट होगा, सी स्मॉल, हिस्ट्री एच स्मॉल, ज्योग्राफी जी स्मॉल, बायोलॉजी बी स्मॉल, केमिस्ट्री सी स्मॉल, फिजिक्स पी स्मॉल, संस्कृत एस स्मॉल इज रॉन्ग, इंग्लिश ई स्मॉल इज रॉन्ग, साइंस एस स्मॉल, और मैथमेटिक्स एम स्मॉल। और बस आज इतना ही आज के इस वीडियो क्लिप में। अगले क्लिप में हम लोग जानेंगे इस इंग्लिश का डेरिवेटिव यूज, द यूसेज। गौर करें आप, मैं यूसेज बोल रहा हूं, यूजेज नहीं बोल रहा हूं। इस पर भी हम लोग एक ऑडियो, एक क्लिप में हम लोग, वीडियो क्लिप में हम लोग देखेंगे कि यूज कब प्रयोग करते हैं, उसका उच्चारण यूएसई वर्ड, सेम वर्ड यूएसई को कब हम यूज बोलते हैं, ये कब हम यूज बोलते हैं और कब हम यूएसई को यूज बोलते हैं, ये हम लोग देखेंगे। ये देखिए, ये जो मैंने लिखा है ना, ये दिस इज प्रोनाउंसिएशन, ये प्रोनाउंसिएशन है, और ये है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं इसको, कि आप जैसे बोलते हैं उसका वो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो हम लोग इस यूज और यूज, कब इसी वर्ड को हम यूज कहेंगे और कब यूएसई सेम लेटर्स को हम यूज कहेंगे, वो अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। और फिर मैं रिमाइंड करा दूं इस वीडियो के लास्ट होते होते तक कि आपने ये देखा कि हिंदी का, इंग्लिश का और संस्कृत का ये सारे फर्स्ट लेटर कैपिटल हैं, बाकी सारे सब स्मॉल हैं। और इंग्लिश पर हम लोग फिर विशेष करके बात करेंगे अगले वीडियो क्लिप में। थैंक यू, थैंक यू।